माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का। हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी। We extend a very warm and hearty welcome to Mr. O. Suzuki, ex-President Suzuki Motor Corporation, Japan, His Excellency Mr. Satoshi Suzuki, Ambassador of Japan to India, respected Mr. T. Suzuki, President Suzuki Motor Corporation. स्वागत है माननीय सांसद श्री C.R. पाटिल, माननीय राज्य मंत्री गुजरात सरकार श्री जगदीश पंचाल, मिस्टर H. ताकेउची, MD and CEO मारुति सुजुकी तथा श्री R.C. भार्गव, चेयरमैन मारुति सुजुकी। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। In the Indian tradition, guests are held in the highest esteem. May I now request respected Mr. O. Suzuki, ex-President Suzuki Motor Corporation, to kindly welcome Honorable Prime Minister of India with Patola shawl. गुजरात राज्य की हस्तकला जो विश्व में मशहूर है, जिसने विश्व को मोहित किया है, पटोला। थैंक यू सर। दो देशों की मित्रता की मिसाल है मारुति सुजुकी, जो एक ऐसी मशाल है जिससे रोशन है भारतीय जनजीवन। 8 साल के नए नेतृत्व ने देश में ऐतिहासिक बदलाव का ऐसा इंद्रधनुष बनाया कि जिसमें विकास के सारे रंग उभर आए। भारतीय प्रतिभा और जापानी तकनीक ने प्रगति का नया सफर तय किया। गुजरात विकास की पराकाष्ठा यात्रा में है सुजुकी कदम दर कदम गुजरात के साथ। सुजुकी के भारत में 40 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज हम सब बेहद हर्षित हैं और यहाँ एकत्रित हैं। अब हम निवेदन करते हैं चेयरमैन मारुति सुजुकी श्री R.C. भार्गव आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन तथा ओपनिंग रिमार्क्स के लिए पधारें। Most respected Prime Minister, respected Chief Minister of Gujarat, respected Chief Minister of Haryana, His Excellency the Ambassador of Japan, all the distinguished dignitaries on the dais and valued guests and members of the media. It is my honor and privilege to welcome on behalf of Maruti Suzuki and Suzuki Japan, the leader of the largest democracy in the world, to this event to celebrate 40 years of Suzuki in India and the creation of Maruti as a joint venture. We find it hard, sir, to express our great happiness at your presence with us today. Mr. Prime Minister, sir, I believe your presence signifies the great importance that you attach to strong economic ties with Japan. A few words about our learnings over these 40 years that helped to make India the 4th largest car manufacturer in the world. The partnership has shown that the combination of Japanese and Indian strengths results in world-class competitiveness. The trust that Osamu Suzuki-san placed on us has been a major factor for success. We learned that strong teamwork between employees and management is possible and creates a win-win situation for both. 98% of our workers pay income tax, and a large percentage own houses and cars. We understand the critical role of a robust and competitive supply chain. We've learned how to make continuous improvements in quality and the importance of always focusing on the customer. The introduction of low-cost and reliable transport led to giving women a much greater degree of independence, participating in the job market and promoting economic activities.
The automobile sector is one of the leading employment creators. India has become a large exporter of cars, with Maruti Suzuki alone selling about 250,000 units. Today, sir, you're laying the foundation stone of what has the potential of becoming the largest car production facility at one site. A foundation has been established by Suzuki Japan in India. Initially, we intend to engage in activities to promote more competitive manufacturing in India. Maruti Suzuki is fully committed to the government's program to reduce carbon emissions. Electric vehicles will be manufactured from 2025 in Gujarat. We will continue to promote larger use of all other fuels and technologies to reduce carbon and consumption of oil. Sir, we have always been fortunate to receive your guidance and advice and hope to continue to do so as we play our role in creating the India of your vision. Jai Hind. थैंक यू मिस्टर भार्गव। हम भारतवासियों को गर्व है कि विश्व में कार मैन्युफैक्चरिंग में हमारा भारत चौथे स्थान पर है। हम उम्मीद करते हैं कि मारुति सुजुकी और भी ऊंचाइयों को छुएगी। May I now request respected Mr. T. Suzuki, President Suzuki Motor Corporation, to kindly address us. Your Excellency Prime Minister, Mr. Narendra Modi, Your Excellency Chief Minister of Gujarat, Mr. Bhupendra Patel, Your Excellency Chief Minister of Haryana, Mr. Manohar Lal, Your Excellency Ambassador of Japan to India, Mr. Satoshi Suzuki, and all distinguished guests, good evening and namaskar. Before I begin, I would like to express my deepest gratitude to Your Excellency Mr. Modi for accepting our invitation to attend this gathering. Subsequent to our meetings in New Delhi in March and in Tokyo in May, I'm much honored to see Your Excellency again here in Gujarat today. Dear guests, we entered into joint venture agreement in October 1982. As this year marks 40 years of our partnership with the people of India, we decided to hold this commemorative ceremony to express our sincere gratitude to Mr. Modi and all the people of India. Over the past 40 years, Maruti Suzuki has been the prominent leaders in the Indian automobile sector. Maruti Suzuki is recognized as the most successful joint project between India and Japan. At the same time, India has become one of the most important countries for Suzuki Group. In the last fiscal, Suzuki Group produced at 28 lakh automobiles all over the world. Out of those, more than 16 lakh units, or about 60%,
were produced in India. Also, exports from India reached a highest ever record of about 2.4 lakh units last year. Today, India plays a significant role as a global automobile production hub in Suzuki Group. In particular, after Mr. Modi has taken office of Prime Minister, we have inaugurated a new automobile manufacturing plant, Suzuki Motor Gujarat, which is in full operation of 7.5 lakh unit production capacity per annum. Just last week, cumulated production of this plant exceeded 20 lakh units. We have also started commercial production and export of lithium-ion battery cells in Gujarat. We are now preparing the production of EVs and EV batteries in Gujarat, with a total investment of over 10,000 crore rupees. Later in today's session, we have a foundation stone laid by Your Excellency of this new EV battery plant, together with a new automobile manufacturing plant in Kharkhoda, Haryana. Today, I would like to make an announcement on a new initiative to take our Indian operation to a further height. We are pleased to announce that we have established a new company, Suzuki R&D Center India. This new company is wholly owned by Suzuki Japan. We aim to strengthen our R&D competitiveness and capabilities in new fields of technologies, not only for India, but also for global markets. Furthermore, we will strengthen our ties with Indian academic institutes and startups to develop diverse human resources. Thanks to the support of Your Excellency Prime Minister Mr. Modi and stable visionary policy of the Government of India, Suzuki Group will continue to make investment in India aggressively, with confidence to contribute to Make in India and Atma-Nirbhar Bharat. Thank you for your kind attention. थैंक यू रिस्पेक्टेड मिस्टर टी सुजुकी। सुजुकी ने हमेशा भारतीयों के दिलों को छुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मठता, भारत भक्ति, जन सेवा का जज्बा इतना स्फूर्तिदायक है कि उससे ऊर्जा लेकर हरियाणा भी विकास पथ पर उत्साहित हो अग्रसर है। अब हम निवेदन करते हैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से, जो कि इस वक्त हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। देश के यशस्वी, तपस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770. श्री भूपेंद्र सिंह पटेल जी, भारत में जापान के एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर संतोषी सुजुकी जी, मारुति सुजुकी कॉरपोरेशन के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर ओयाशु सुजुकी जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, मारुति के चेयरमैन श्री आरसी भार्गव जी, हरियाणा और गुजरात में मंचों पर विद्यमान हरियाणा और गुजरात के हमारे मंत्रीगण, सुजुकी और सरकारों के हमारे सभी अधिकारीगण, सांसद और विधायकगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार, छायाकर मित्रों, आज बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है कि हरियाणा और खास करके खरखोदा और आसपास यहां के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहां हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1 महीने में चाहे वो आईओसी का एथनॉल प्लांट हो या फरीदाबाद का जो अमृत हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो, और आज मारुति का ये तीसरा प्लांट, इसके शिलान्यास के अवसर पर आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पहले भी प्रगति की राह पर है और तेज गति से हरियाणा जो है प्रगति की राह पर बनेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से प्रोजेक्ट जो हरियाणा में पहले दिए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हरियाणा की एक आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री, केएमपी, केजीपी, ये एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लिंक्स, 4 मेट्रो लिंक्स भी आपने दिए हैं। रोहतक का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर सेंटर, हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, इतने सब प्रोजेक्ट हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा देश की जो हमारी आर्थिक गति है, आर्थिक स्थिति है, उसको और मजबूत करेगा। अगर मैं मारुति की बात करूं तो निश्चित रूप से 40 साल पहले जब 1981 में हरियाणा में पहला प्लांट गुरुग्राम में इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय हरियाणा एक नया प्रदेश था, 15 साल सिर्फ प्रदेश को बने हुए थे। न केवल वो मारुति का एक प्लांट था, बल्कि हमारी प्रगति की शुरुआत वहां से हुई। मारुति के उस प्लांट से गुरुग्राम और आसपास बहुत से उद्योग फले फूले हैं। उसमें हरियाणा जो है ऑटोमोबाइल का एक हब बना है। साथ साथ हमने जितने भी हरियाणा विनिर्माण में अग्रणी काम थे, एक्सकेवेटर्स का भी 80% हरियाणा में बनता है। जितनी क्रेन्स देश भर में बनती हैं उसका 52% वो हरियाणा में बनता है। जितनी कारें हैं वो भी 50% हरियाणा में बनती हैं। मोटरसाइकिल का 60% ये हरियाणा में बनता है। और मारुति सुजुकी का इस प्रकार से आगे बढ़ना निश्चित रूप से हरियाणा के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। यदि पहला हमारा जो गुरुग्राम में ये प्लांट बना, बाद में मानेसर में दूसरा प्लांट बना, उसी के कारण से आज यदि गुरुग्राम शहर देश और दुनिया का एक आइकन सिटी बना है तो उसमें मारुति का अपना योगदान है। और निश्चित रूप से ये जो तीसरा आज जो प्रोजेक्ट है
इसके शिलान्यास के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि सोनीपत और खरखोदा का ये जो केंद्र है, ये भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसमें भी लगभग 11,000 लोगों को ये रोजगार मिलने वाला है। 10 लाख कारें ये नई इस बीड़े में ये जुड़ने वाली हैं। मारुति निश्चित रूप से जापान इसका अपना एक योगदान है। वैसे तो हरियाणा में दुनिया के बहुत से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के कारण से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जापान का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। अगर मैं अकेले जापान देश की भूमिका हरियाणा में बताऊं तो आज देश भर में लगभग 1450 इकाइयां जापान की देश में काम कर रही हैं, जिसमें 28% और जापान की इकाइयां केवल ये हरियाणा में है। जापान में निश्चित रूप से उनका जो विश्वास है एक कहावत से झलकता है। कहावत क्या है? सेनरे नो मिचिमो इपोकारा, अर्थात ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। तो दिस इज अ प्रोवर्ब इन जापान। समय समय पर जापान और हरियाणा का ये जो संबंध है ये आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस तरह हरियाणा और जापान की जो सामाजिक आर्थिक विकास की यात्रा इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दुनिया के लोग, द वर्ल्ड नीड्स कोऑपरेशन नॉट द कंपटीशन। वी आर ऑलवेज हियर फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दुनिया में बहुत से मॉडल हैं बिजनेस के, जैसे B2B, G2B, B2G, लेकिन हम एक अलग विचार से काम करते हैं। वी बिलीव इन H2H, अर्थात हार्ट टू हार्ट वर्किंग सिस्टम। कोकोरो तो कोकोरो नो केन मेई, अर्थात हम दिल से दिल ये जोड़ करके और काम करते हैं। निश्चित रूप से जापान के हमारे इस प्रकल्प के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी महोदय को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हमने कही है कि $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी, इस क्लब में हमको बहुत जल्दी पहुंचना है। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत आत्मनिर्भर का संकल्प, मेक इन इंडिया का संकल्प, डिजिटल इंडिया का संकल्प ये पूरा करेगा। हरियाणा में 2019 से आज तक अगर निवेश की मैं बात करता हूं तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां हुआ है। उद्योग और व्यापार के अनुकूल प्रवेश हमने तैयार किए हैं। लॉजिस्टिक दक्षता में हमने सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग से लेकर के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तक ये सब सुविधाएं, उद्योगों को ढांचागत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लीड्स 2021 इंडेक्स में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। लैंडलॉक स्टेट होने के बाद भी निर्यात की तत्परता में हमारा पहला स्थान आया है। हमने अभी इन वर्षों में अपने यहाँ निर्यात बढ़ाने का भी, दोगुना निर्यात करने का एक हमने संकल्प लिया है। इस प्रकार से हरियाणा देश के विकास में अपना योगदान पूरा करेगा। और भी इसी प्रकार मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारा जितना सहयोग कर रहे हैं उसमें और आगे भी इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। और मैं पुनः मारुति सुजुकी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने खरखोदा में तीसरा प्लांट हमारा लगाया है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि समय समय पर हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा इनका अपना है, तो हरियाणा की संभाल समय समय पर आप करते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रगति चलती रहेगी। देश की प्रगति में अपना योगदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल के पुण्य भावों को समेटकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया गुजरात रचा था। विकास की इसी गौरव परंपरा के अनुयायी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में गुजरात विकास की अनवरत यात्रा को आगे और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री गुजरात आपसे कि कृपया हमें संबोधित करें। राज्य की राजधानी गांधीनगर में मारुति सुजुकी 40 साल की समृद्धि
विरासत की साझेदारी का उत्सव मना रहा है। आज इस अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान वैश्विक नेता, विकास पुरुष और जनप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी साहब, हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हरियाणा के मुख्य प्रधान श्री मनोहर लाल खट्टर जी, गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल जी, भारत में जापान के राजदूत श्री सतोषजी सुजुकी सान, उद्योग राज्य मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, सुजुकी मोटर्स के प्रमुख श्री T सुजुकी सान, सुजुकी इंडिया के अध्यक्ष श्री RC भार्गव जी, एक्स प्रेसिडेंट श्री O सुजुकी सान, CEO श्री H ताकेउची सान, उपस्थित अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य सभी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को भारत में 40 साल सफलता से पूरे करने की बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को एक नया आयाम दिया था। गुजरात की विकास यात्रा में जापान की सुजुकी कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साल 2012 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक गुजरात में मारुति कंपनी का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। गुजरात सरकार की EV पॉलिसी का लाभ लेते हुए बैटरी निर्माण और ऑटोमोटिव रिसाइकलिंग सुविधा के लिए मारुति सुजुकी कंपनी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत गुजरात में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने पिछले 8 सालों में डबल इंजन की रफ्तार से विकास किया है। डबल इंजन सरकार के कारण ही आज गुजरात भारत का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बन सका है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 सालों में भारत में आए कुल निवेश 31.3 लाख करोड़ में से अकेले गुजरात में ही 57% यानी कि लगभग 17.7 लाख करोड़ का निवेश आया है। यह डबल इंजन सरकार के विकास का ही परिणाम है कि आज देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 18% के योगदान के साथ गुजरात सबसे आगे है। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 से लेकर मार्च 2022 तक गुजरात को मिले क्यूमुलेटिव FDI पर ध्यान दे तो यह लगभग 51 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इसी प्रकार भारत के नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार 3 साल से गुजरात बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में गुजरात शीर्ष पर है। नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पर है और भारत सरकार के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी पहले स्थान जैसी अनेक उपलब्धियों को गुजरात ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हासिल किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने दूरंदेशी नेतृत्व और उनकी मार्गदर्शन में गुजरात सरकार नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फिनटेक और फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ा रहा है। उन्होंने ही गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसा अप्रतिम उपहार दिया है, जिसने गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में काया पलट की है। प्रधानमंत्री जी के पद चिन्ह पर चलते हुए हमारी सरकार ने भी कई नई नीतियों जैसी सेमीकंडक्टर पॉलिसी, न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल पॉलिसी और न्यू IT पॉलिसी को भी राज्य में लागू किया है। ये पॉलिसीज गुजरात को अन्य क्षेत्रों के लिए भी मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाएगी, ये मेरा विश्वास है।
आज मारुति सुजुकी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक MOU भी किया गया है, जिसकी तहत गुजरात में 2 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। दोनों కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885555. संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से की जाने वाली इस पहल से गुजरात में क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। साथ ही इस बायोगैस प्लांट के शेष पदार्थों का उपयोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किया जा सकेगा। मैं एक बार फिर मारुति सुजुकी को भारत में 40 साल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देता हूं और भारत एवं गुजरात में उनकी आगामी परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री गुजरात। आज के इस शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं जापान के माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर फूमियो किशिदा का संदेश। ご出席の皆様、ナマスカール。マルチ・スズキの40周年記念祝賀式典開催にあたり、心よりお祝い申し上げます。マルチ・スズキはインド進出40年を経て、日本とインドの強固な経済関係を代表する大企業に成長されました。同社の今日の成功は、インド市場の潜在的可能性を見抜き、進出を決意された鈴木相談役はじめ、マルチ・スズキ関係者の先見の明、そしてその後のご尽力の賜物ですが、同時にインドの国民の皆様、インド政府のご理解とご支援があってのものだと考えております。特に近年、インドではモディ首相の強いリーダーシップで行われているさまざまな製造業支援策により、経済成長が一層加速しています。私も本年3月にインドを訪れた際、モディ首相と今後5年間で官民合わせてインドに対し5兆円の投融資を行うという目標で一致いたしました。その際、マルチ・スズキには約1500億円の投資表明をしていただきました。その他にも多数の日本企業がインドへの投資を発表しており、今後の二国間の経済関係はますます強固になっていくものと確信をしています。今年は日インド国交樹立70周年の節目の年にあたります。我々両国は自由、民主主義、法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、長い交流の歴史の中で非常に良好な関係を維持してきました。引き続きモディ首相とともに日印特別戦略的グローバルパートナーシップのさらなる発展、そして自由で開かれたインド太平洋の実現に取り組んでいく決意です。最後になりますが、今後ともマルチ・スズキに代表される日本企業が日印友好の架け橋の象徴としてますます繁栄すること、そして日印経済関係の発展を記念し、私からのお祝いのご挨拶とさせていただきます。ダンニャワード。
थैंक यू सर फॉर योर हार्ट टचिंग वर्ड्स। भारत और जापान के रिश्ते यकीनन बहुत मजबूत हैं। मारुति सुजुकी भारत के सूर्योदय पर अपने विश्वास और अपने साथ का आश्वासन देते हुए 2 अनमोल सौगात लेकर आया है। पहली है हंसलपुर गुजरात में 2026 तक संचालित हो जाने वाला 7,300 करोड़ की लागत वाला सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट, और दूसरी सौगात है खरखोदा हरियाणा में मारुति सुजुकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 800 एकड़ की इस साइट पर हर साल 10 लाख पैसेंजर व्हीकल बना सकने वाले प्लांट का सामर्थ्य है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक होगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया हंसलपुर के सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। घर घर में जिसकी पहचान मारुति सुजुकी ऐसा बन गया है जाना माना नाम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रोत्साहन को लगे पंख, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत का नया आसमान खुला। कौशल विकास से हमने कुछ हुनर भी तराशे। गुजरात के संवरते वर्तमान और चमकते भविष्य के रास्ते में साथ चलने को संकल्पबद्ध है मारुति सुजुकी। आइए देखते हैं 40 साल का ये सफर। मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का
ये था मारुति सुजुकी का 40 साल का सफर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात मॉडल ने भारत को प्रेरणा दी, तो आज न्यू इंडिया का भारत मॉडल विश्व को प्रेरणा दे रहा है, विश्व को रिझा रहा है कि कैसे अगर कुशल नेतृत्व हो और 130 करोड़ जनता उस नेतृत्व पर अटूट विश्वास करती हो तो बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। आपके सानिध्य में माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया जापान के साथ एक खास लगाव और एक खास आदर भाव से जुड़ा हुआ है। 21वीं सदी के जननायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री भाई श्री दुष्यंत चौटाला जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारत में जापान के एम्बेसडर, मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं सुजुकी और सुजुकी परिवार से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। अभी इसी साल मई में मुलाकात हुई थी, ओसामू सुजुकी जी से हुई थी और उन्होंने मुझसे 40 वर्ष के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। मेरे लिए इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव का साक्षी बनना एक सुखद अनुभव है। साथियों, मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। और इस दोस्ती की जब बात होती है तो हर एक भारतवासी को हमारे मित्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी, उनकी याद जरूर आती है। आबे शान जब गुजरात आए थे, उन्होंने जो समय यहां बिताया था उसे गुजरात के लोग बहुत आत्मीयता से याद करते हैं। हमारे देशों को और करीब लाने के लिए
जो प्रयास उन्होंने किए थे, आज पीएम किशिदा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री किशिदा का वीडियो संदेश भी सुना। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री किशिदा और जापान के सभी नागरिकों का भी भारत की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस अवसर गुजरात और हरियाणा के लोगों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, जो देश के औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को लगातार गति दे रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की जो विकास परक, उद्योग परक नीतियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जो प्रयास है, उनका लाभ करोड़ों प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को मिल रहा है। साथियों, इस खास आयोजन में आज मुझे बहुत कुछ पुराना याद आना स्वाभाविक। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 04027146899 and 04027148699. स्वाभाविक है। मुझे याद है 13 साल पहले जब सुजुकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए गुजरात आई थी, तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारे मारुति के मित्र गुजरात का पानी पिएंगे, उन्हें भली भांति पता चल जाएगा कि विकास का परफेक्ट मॉडल कहां है। आज मुझे खुशी है कि गुजरात ने सुजुकी को किया अपना वायदा बखूबी निभाया और सुजुकी ने गुजरात की बात भी उसी सम्मान के साथ रखी। आज गुजरात देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है। साथियों, आज का ये अवसर ऐसा है जिसमें गुजरात और जापान के आत्मीय रिश्तों पर जितनी चर्चा करूं उतनी कम होगी। गुजरात और जापान के बीच जो रिश्ता रहा है, वो डिप्लोमेटिक दायरों से भी बहुत ऊंचा रहा है। मुझे याद है जब 2009 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था, तभी से जापान इसके साथ एक पार्टनर कंट्री के तौर पर हमेशा जुड़ा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, एक राज्य और दूसरी तरह एक डेवलप कंट्री, इन दोनों का साथ चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। अपने मुख्यमंत्री काल के दिनों में मैं अक्सर एक बात कहता था, I want to create a mini Japan in Gujarat. इसके पीछे का भाव यही था कि जापान के हमारे अतिथियों को गुजरात में भी जापान की अनुभूति हो, उनको फीलिंग आए।
हमने प्रयास किया कि जापान के लोगों को, जापान की कंपनियों को यहां किसी तरह की परेशानी न हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते थे। बहुतों को शायद सुनकर के आश्चर्य भी होगा। अब हम सबको पता है, जापान के लोग हो और गोल्फ खेलना न हो तो बात अधूरी रह जाती है। बिना गोल्फ आप जापानीज की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हमारा गुजरात, वहां गोल्फ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे अगर जापान को यहां लाना है तो मुझे गोल्फ कोर्स से शुरू करने चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज गुजरात में अनेक गोल्फ के मैदान हुए हैं जहां हमारे जापान के लोग यहां काम करते हैं उनको वीकेंड बिताने के लिए अवसर मिल जाता है। कई रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जिनकी विशेषता है जापानी कुजीन है, जापानी फूड है, उसकी भी चिंता की। जापान से आए साथियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए बहुत से गुजरातियों ने जापानी भाषा भी सीखी है और इन दिनों भी जापानी भाषा के क्लासेस चल रहे हैं। साथियों, हमारे प्रयासों में हमेशा से गंभीरता भी रही है और जापान के लिए स्नेह भी रहा है। आज इसी का नतीजा है कि सुजुकी समेत जापान की 125 से ज्यादा कंपनियां गुजरात में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल से लेकर बायोफ्यूल तक के क्षेत्र में यहां जापानी कंपनियां अपना विस्तार कर रही है। जेट्रो द्वारा स्थापित अहमदाबाद बिजनेस सपोर्ट सेंटर, इसमें एक साथ कई कंपनियों को प्लग एंड प्ले वर्कप्लेस फैसिलिटी देने की सुविधा है। आज गुजरात में 2 जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हर साल सैकड़ों युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। कई कंपनियों का गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और आईआईटी से भी टाई अप है। अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की स्थापना में भी जिस तरह ह्यूगो इंटरनेशनल एसोसिएशन का बहुमूल्य योगदान रहा, उसे गुजरात कभी नहीं भूल सकता। अब ऐसा ही इको फ्रेंडली गार्डन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। काइजन को लेकर 18-19 साल पहले जो प्रयास गुजरात ने किए थे, जितनी गंभीरता से इसे लागू किया था, उसका गुजरात को बहुत लाभ मिला। गुजरात आज विकास की जिस ऊंचाई पर है, उसमें निश्चित तौर पर काइजन की भी एक बड़ी भूमिका है। मैं जब प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली गया तो काइजन के अनुभवों को पीएमओ और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में भी इसे लागू किया। अब काइजन का लाभ देश को और ज्यादा मिल रहा है। सरकार में हमने जापान प्लस की भी एक विशेष व्यवस्था की है। गुजरात और जापान की साझा यात्रा को यादगार बनाने वाले जापान के बहुत सारे मित्र, कई सारे पुराने मेरे साथी आज यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं,
बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। साथियों, आज जब हम ईवी जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें अपने देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को और उसके टारगेट्स को भी सामने रखना बहुत आवश्यक है। भारत ने COP26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमें बायोगैस, फ्लैक्स फ्यूल जैसे विकल्पों की ओर भी बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी इसी दिशा में बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाइब्रिड ईवी जैसे तमाम विकल्पों पर भी काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि इसके साथ साथ सुजुकी कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस यानी सीबीजी जैसी संभावनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। भारत की दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां एक हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल लर्निंग का भी और बेहतर माहौल बने। इसका लाभ देश और व्यापार दोनों को होगा। साथियों, अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। हम जानते हैं कि आज ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। इसलिए इस दिशा में इनोवेशन और प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भरोसा है आपके और ऑटो सेक्टर के सभी साथियों के सहयोग से देश अपना ये लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। हम विकास
और समृद्धि के लक्ष्य पर उसी गति से पहुंचेंगे जो गति आज हमारे एक्सप्रेस वेज पर दिखाई देती है। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुजुकी परिवार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप विस्तार के जो भी सपने लेकर के चलेंगे उसे गति देने में चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपकी छत्र छाया में गुजरात का विकास, भारत का प्रकाश अक्षय है। गुजरात की पूज्य धरा, भारत की पूज्य धरा कृतज्ञ है आपके प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने बापू तथा सरदार पटेल की विरासत को मार्गदर्शक मान के भारत के असीम विकास के रास्ते तय किए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मंचासीन सभी गणमान्यों का भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कुछ देर आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, जापान के हमारे सभी एस्टीम्ड गेस्ट का हृदय से धन्यवाद। दो देशों की दोस्ती का एक अद्भुत नज़ारा, अविस्मरणीय अभूतपूर्व दृश्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड मिस्टर ओ सुजुकी और सभी डिग्नेटरीज ऑन द डेस्क। राष्ट्र की गौरव पताका को कीर्ति के शिखर पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के हम हृदय से आभारी हैं। सुशासन के 20 वर्ष उन्होंने हम सबको दिए हैं। आप सभी से निवेदन है कुछ देर आप लोग सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.